Hello, my dear students. A very warm welcome to Allen Online. And today we have solved your very big problem. I know, children, that you're facing a little problem in the chapter drainage, which is class 9's geography's chapter, and your exams are at your doorstep. So don't worry, we are here to help you, and let us begin the chapter in one shot. First of all, we talk about the drainage of a particular area. Now, whenever I say that it is the river system of a particular area, it means that one major river has been flowing and there are n number of headwaters or n number of rivers which are being joining to that major river. So, from the start till the end where it meets certain ocean, it meets certain, water body, the entire passage is called the drainage of that particular river. Small streams that are flowing from different directions, when they come together, like if you see here, it's Ganga which is flowing, and then you have Yamuna which has been joining, you have Ghagar, Gandak, Kosi which are been joining. So one river which has been flowing and it is joined from other rivers from various directions, and ultimately it gets collected and flows into a water body that is called the drainage system. Further, you talk about the drainage basin. Now, whenever we talk about a drainage basin, we talk about a single river. Suppose I'm talking about only river Ganga. So that is the drainage basin. So you need to mark my words wherever you've been asked with the definition, because usually this question comes into the definition of one marker. Explain what is a drainage system. So when you're talking about a drainage system, it is one major river which is being joined by various other rivers. It is a complete river system of that area. But when you talk about a drainage basin, you're talking about that single river. So this is what comes in the definition. Further, we also talk about water divide. Now, what is water divide? Any upland which is raised and it separates two water body. Like here you have river Indus which has been flowing. Here we have Ganga which has been flowing. And this upland is Ambala. Right, so Ambala is a water divide between Indus and Ganga, and it is an upland. It is an upland. Now go through the definition. An elevated area such as mountain or upland that separates two drainage basins. So these are two separate drainage basins. We are talking about drainage basin of Indus and we are talking about drainage basin of Ganga, and Ambala is the upland, it is the water divide. So that upland is said to be a water divide. Now these are three definitions which could be asked. Further, the chapter comes to a very interesting part. See, world's largest drainage basin is of Amazon river. तो अब यहाँ से chapter का एक मूलभूत part शुरू होता है, very basic, very important part which begins here. That is the drainage system of India. Now, India is divided into two different drainage systems. दो drainage systems है जिसमें India divided है. सबसे पहला जो drainage system है वो है Himalayan rivers का. अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये जो drainage basin है ये northern part of the country में है, क्योंकि जितनी भी Himalayan rivers हैं वो originate भी north से होती हैं और flow भी north में ही कर रही हैं. वहीं पर जो हमारा दूसरा system है, जो दूसरा river system है, that is पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, जो कि साउथ में है. राइट, ये जो नदियां हैं ये या तो विंध्यास से ओरिजिनेट हो रही हैं या वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही हैं, और पूरा जो इनका बेसिन है, पूरा जो इनका फ्लो है ये कंप्लीटली पेनिनसुलर रीजन में है, यानी साउथ में है, इसीलिए इन्हें पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कहा जाता है. अब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमारी जो वन शॉट प्रेपरेशन है हम वो क्वेश्चन के हिसाब से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हमें एग्जाम लिखना है. राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो है द डिफरेंस बिटवीन. अब ये डिफरेंस तो है ना आपको हेल्प करेगा. अगर आपसे सपोज हिमालयन रिवर सिस्टम पर या पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के शॉर्ट नोट लिखने को भी आ जाए तो यही पॉइंट्स हैं. दीज आर द सेम पॉइंट्स व्हिच आर गोइंग टू हेल्प यू टू इवन फ्रेम एन आंसर फॉर दोस शॉर्ट नोट्स. राइट, तो सबसे पहले हम हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करते हैं. हमें ये पता है कि ये जो रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट कर रही है हिमालय से, और इसीलिए इनका जो नाम है वो हिमालयन रिवर्स रखा गया है. अब
सेम बात यहाँ पर भी होगी कि ये जो नदियां हैं ये ओरिजिनेट कर रही हैं पेनिनसुलर प्लेटू से। पेनिनसुलर प्लेटू में कहाँ से, मैंने बताया विंध्या से, वेस्टर्न घाट से, और इसीलिए इनका नाम पेनिनसुलर रिवर्स कहा जाता है, राइट। तो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, शॉर्ट नोट में भी काम आएगा और डिफरेंशिएट बिटवीन में भी काम आएगा। फिर है these rivers are large basins and catchment areas. Now if you talk about the northern rivers, हिमालयन रिवर्स की बात करो तो यार कितना बढ़िया स्पेस मिल रहा है, अभी पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कितना बड़ा कैचमेंट एरिया है इनका। और पेनिनसुलर रिवर्स जो है इनका बेसिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, स्मॉलर बेसिन होते हैं, क्योंकि इनको इतनी जगह ही नहीं मिल रही कि ये बहुत अच्छे से फैल सके। आगे हिमालयन रिवर जो है ये पेरिनियल रिवर्स हैं। पेरिनियल रिवर्स का मतलब होता है ऐसी नदियां जिनपे पानी 24 घंटे 12 ही महीने है, क्योंकि ये जो रिवर्स हैं ये फ्लड्स रिसीव करती हैं, और ये फ्लड्स रिसीव करती हैं, ये यहाँ पर फ्लड्स देखे जाते हैं साल में कुछ ऐसे पर्टिकुलर सीजन। जैसे अगर बात करें समर्स में, तो समर्स में ग्लेशियर मेल्ट हो रहा होता है, और ग्लेशियर के मेल्ट होने से हिमालयन रिवर्स में पानी आता है और फ्लड्स भी आते हैं। वहीं पर हिमालयन रिवर में अगर फ्लड्स देखे जाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण मॉनसून भी है, राइट। तो हिमालयन रिवर्स पेरिनियल है, 24 घंटे 12 महीने बह रही हैं, लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स के केस में ऐसा नहीं होगा। इनमें फ्लड्स देखे जाते हैं ड्यूरिंग मॉनसून, समर वाला केस यहाँ पर नहीं होगा। और साथ ही साथ पेनिनसुलर रिवर्स की बात की जाए तो ये ड्राई सीजन भी देखती हैं। अब आगे देखें, द अपर रीचेस ऑफ हिमालयन रिवर्स, अगर हम ऊपर वाले हिस्से की बात करें, आर हाईली टॉर्टुअस, बहुत ज्यादा माउंटेन है, राइट, वाटरफॉल बिल्कुल काटते हुए माउंटेन को आ रही हैं। When they enter the plains, there is a sudden reduction in the speed of the flow of water. Naturally देखो माउंटेन्स पे तो स्टीप है, और जब प्लेन्स पर आती हैं तो थोड़ा सा वाटर के फ्लो में रिडक्शन देखा जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी। Under these circumstances, the river form meanders and often shift their beds. अब देखो रिवर जब इस तरीके से मूव करती है, इसे कहते हैं द meandering of river। तो क्योंकि डिफरेंट टोपोग्राफी को ये क्रॉस करती हुई आ रही है, तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे पैटर्न्स भी ये नदियां बना रही होती है। जैसे डेंड्रेट्रिक पैटर्न बनता है स्लोप पर, ट्री के ब्रांचेस की तरह। रेडियल पैटर्न देखा जाता है जब ये शुरू होती है, इट कम्स फ्रॉम अ डोम। रेक्टेंगुलर पैटर्न देखा जाता है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न जो हैं ये जहां से शुरू होती है इसे लेकर एंड तक बनाती हैं। और बहुत सारे लेक्स, मियांडर्स की वजह से लेक्स के फॉर्मेशन भी होते हैं। लेक्स क्या है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना, बस ये याद रखना कि बहुत बढ़िया टोपोग्राफी है तो घूमते हुए आ रही है। अदरवाइज ये जो लेक्स वाला पार्ट है ये हम आने वाले लेक्चर में या चैप्टर में कवर करेंगे। अब आता है रिवर का, हिमालयन रिवर सिस्टम का एग्जाम्पल। तो हिमालयन रिवर सिस्टम की दो बहुत महत्वपूर्ण नदियां जो मैंने मेंशन की है वो है इंडस और गंगा। वैसे तीन बहुत महत्वपूर्ण है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर बेसिन की। तो देखो यहाँ पर भी हम देख रहे थे हार्ड रॉक सर्फेसेस है, नॉन अलुवियल कैरेक्टर है। अलुवियल मतलब बहुत ज्यादा चिकनी मिट्टी डिपॉजिट नहीं हो पाएगी क्योंकि इतना तो फ्लो नहीं है, इतना तो पानी नहीं है, फ्लड्स इतना नहीं आ रहा। लेस स्कोप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मियांडर, इतनी जगह नहीं है कि मियांडरिंग कर पाए, इतने सारी पैटर्न्स को डेवलप कर पाए। पर हाँ, छोटे फॉर्मेट में ये भी पैटर्न्स डेवलप करती हैं। और पेनिनसुलर रिवर्स में हमारे एग्जाम्पल है नर्मदा है, तापी है, माही है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारी नदियां हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। सो आई होप चिल्ड्रन यू आर वेरी क्लियर विद दिस। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मेजर हिमालयन रिवर्स की। देयर आर 3 मेजर हिमालयन रिवर्स, रिवर इंडस, रिवर गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्र। और इन तीनों के ड्रेनेज बेसिन को, इन तीनों के रिवर सिस्टम को हम बहुत बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिवर इंडस की। अब मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले रही हूं ताकि पहले मैं आपको एक आइडिया दे दूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कंसिडर करना, लेकिन ये लर्न करने का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका मुझे लगता है, राइट। रिवर इंडस ओरिजिनेट करती है नियर लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर से ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, राइट, लद्दाख, राइट, और कश्मीर रीजन पहुंचती है, जहां पर ये नदी 4 ट्रिब्यूटरीज बनाती है। और वो 4 ट्रिब्यूटरीज हैं हुंजा, जास्कर, श्योक और नुब्रा। यहां से ये माउंटेन बाल्गिस्तान, गिलगिस्ट होते हुए माउंटेन एटॉक से पाकिस्तान में अपनी 5 ट्रिब्यूटरीज बनाती है। वो 5 ट्रिब्यूटरीज है रिवर चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज।
इनमें से कुछ ही ट्रिब्यूटरीज इंडिया आ पाती है, दो बहुत मेजर जो इंडिया आती हैं, वैसे 2 से 3 ट्रिब्यूटरीज इंडिया आती हैं और ये हमारा पंजाब है। लेकिन दुखद वजह से, पार्टीशन की वजह से आज पंजाब हमारे पास नहीं है। आज जो पूरा लैंड ऑफ 5 रिवर्स है वो एक्चुअली में पाकिस्तान के पास है। जो हमारे पास है उसमें अब ज्यादा 2 या 3 नदियों का फ्लो है, राइट, तो उसे दोआब भी कहा जाता है। अब यहां पर पाकिस्तान में ये नदी मिठानकोट पर मिलती है, राइट, दीज 5 रिवर्स दे जॉइन टुगेदर एट मिठानकोट और फिर कराची से ये अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ड्रेनेज बेसिन है, इस तरीके से करोगे तो हमेशा याद रहेगा। एक बार इसको थ्योरी के थ्रू भी गो थ्रू कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि रिवर इंडस जो है वो नियर लेक मानसरोवर ओरिजिनेट करती है और इसकी टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर की है। तो हमने जैसे पढ़ा लेक मानसरोवर के पास से ओरिजिनेट करने के बाद ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट पहुंचती है, उसके बाद कश्मीर रीजन में 4 ट्रिब्यूटरीज बनाती है, बाल्टिस्तान और गिलगिस्ट होते हुए माउंटेन इटॉक से ये पाकिस्तान में सतलज, राबी, ब्यास, चेनाब, झेलम, ये 5 ट्रिब्यूटरीज के लिए पंजाब जाना जाता है और ये 5 मिठानकोट पे मिलती हैं, जहां से ये कराची से ड्रेन कर जाती है इन द अरेबियन सी। अब इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में साइन हुई थी और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया इज सपोज टू यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर विच इज बीन कैरीड बाय रिवर इंडस। सो वी आर लाइबल ओनली टू यूज 20% क्योंकि उतना ही बेसिन हमारे यहाँ पर आ रहा है। आगे बात की जाए रिवर गंगा की। गंगा जो इंडिया की सबसे बड़ी नदियों में से है, गंगा जो इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, राइट। चलिए अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बेसिन है गंगा का, थोड़ा सा लर्निंग पार्ट इसमें ज्यादा होगा और इस रीजन में हमें इसको ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा ताकि, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें इस रीजन में ये बढ़िया बह रही है। अब रिवर गंगा जो है वो ओरिजिनेट करती है गंगोत्री ग्लेशियर से और जब ये ओरिजिनेट करती है तो इसके 2 हेड वाटर्स हैं, एक है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलते हैं देवप्रयाग पर और देवप्रयाग के बाद अगर रिवर माउंटेन्स से बाहर आती है, देवप्रयाग तक रिवर माउंटेन्स में ही होती है, माउंटेन्स से बाहर आएगी एट हरिद्वार। रिवर यमुना जो यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है, ये गंगा के पैरेलल चल रही होती है। इधर से नॉर्दर्न एरिया से घाघर, गंडक, कोसी गंगा को ज्वाइन करते हैं और चंबल, बेटवा और सोन गंगा को ज्वाइन करते हैं। जहां पर इन सारी नदियों का संगम है उस एरिया को इलाहाबाद कहा जाता है, प्रयागराज। यहां से नदी फरक्का बैराज पर पहुंचती है और फरक्का बैराज पर ये नदी 2 हिस्सों में बाइफरकेट हो जाती है। वर्ड्स को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल हमें आंसर में करना है। द रिवर बाइफरकेट्स इनटू 2, एक जो बांग्लादेश पहुंचती है और एक यहां से वेस्ट बंगाल में हुगली से, हुगली रिवर भागीरथी हुगली कहलाती है और वेस्ट बंगाल से ड्रेन कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। गंगा का वो हिस्सा जो बांग्लादेश पहुंचता है उसे कहा जाता है पद्मा। अब इस तरफ से ब्रह्मपुत्र आ रही होती है और इंडिया से होते हुए ब्रह्मपुत्र भी जाती है बांग्लादेश। पद्मा जिसे गंगा का नाम दिया जाता है, गंगा का नाम बांग्लादेश में हो जाता है पद्मा, वैसे ही जो ब्रह्मपुत्र है उसका नाम भी बांग्लादेश में जाकर होता है जमुना। जब पद्मा और जमुना मिलते हैं तो बनती है मेघना और मेघना जो है वो सुंदरबंस डेल्टा से ड्रेन कर जाती है इन द बे ऑफ बंगाल। एंड द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि सुंदरबन डेल्टा का एक बहुत मेजर हिस्सा बांग्लादेश के पास है और हमारे पास कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि भागीरथी हुगली जो है, सिर्फ ये जो ट्रिब्यूटरी या ये जो हेड, ये वाटर है जो गंगा का जो बाइफरकेट होके इस तरफ आता है, ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाता है। तो यहाँ पर हम वापस से एक बार देखते हैं थ्योरी में कि कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट कर रही है भागीरथी और अलकनंदा, इसके 2 हेड स्ट्रीम्स हैं और ये देवप्रयाग पर जाकर मिलती है। 2500 किलोमीटर्स का जो लेंथ है वो गंगा भारत में कवर करती है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है यमुना, घाघर, गंडक, कोसी के नॉर्थ से है और जो पेनिनसुलर रीजन से ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं वो है चंबल, बेटवा और सोन। इन सारी ट्रिब्यूटरीज के बाद हम ये भी जानते हैं कि यमुना जो यमुनोत्री ग्लेशियर से पैरेलल चल रही होती है गंगा के साथ और ये सारी नदियां संगम बनाती हैं इलाहाबाद पर, जहां पर ये नदियां एक दूसरे से मिलती हैं।
ये जो नदियां हैं ये आगे बढ़कर एक बहुत अच्छा प्लेन क्रिएट करती हैं। आपको पता है यूपी जो गंगा के बैंक पर है, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एरिया जहां पर बहुत अलुवियल डेपोजिशन है, इसीलिए नदन प्लेन्स बने हैं, राइट। हमने ये फिजिकल फीचर्स में भी पढ़ा था। और फिर नदी फरक्का पर पहुंचती है, जहां से नदी बाइफरकेट होती है दो हिस्सों में, भागीरथी हुगली, और एक हिस्सा जो बांग्लादेश चला जाता है, जहां पर वो कहलाता है पद्मा। पद्मा से मिलती है जमुना, जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है, और फिर मिलकर बनती है मेघना, और मेघना फाइनली ड्रेन करती है सुंदरबन डेल्टा में। सुंदरबन डेल्टा जो जाना जाता है, द नेम बेसिकली कम्स फ्रॉम सुंदरी ट्री, और ये अपने मार्शी स्वैम्पी रीजन है, राइट। यहाँ पर बहुत ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, और रॉयल बंगाल टाइगर्स का घर है, राइट। तो इनसे भी वन मार्कर्स बनते हैं। अब हम ये समझते हैं कि गंगा के क्लेंजिंग के लिए नमामि गंगा प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के द्वारा जून 2014 में। दे स्टार्टेड अ फ्लैगशिप प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड नमामि गंगा, जिसका मिशन है टू क्लीन रिवर गंगा, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। इसका जो पोल्यूशन अबेटमेंट प्लान इन्होंने शुरू किया कंजर्व करने के लिए, ये नेशनल रिवर को दोबारा से एक जीवन देने के लिए, रेजुविनेशन के लिए हमने नमामि गंगा प्रोग्राम शुरू किया है। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज बेसिन पे। ब्रह्मपुत्र, जैसे मैं आपको एक ही पैटर्न से कह रही हूं, पहले इस तरीके से याद कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, राइट। ब्रह्मपुत्र जो लेक मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है, और ये तिब्बत वाले एरिया में कहलाती है सैंगपो, राइट। क्या नाम होता है इसका? सैंगपो। जैसे हमने देखा ना बांग्लादेश में रिवर का नाम बदल जा रहा था, क्योंकि हर एरिया अपने एरिया में, या जो लोकल लोग हैं वो अपना लोकल नाम देते हैं। सो ब्रह्मपुत्र विच इज कॉल्ड सैंगपो एंटर्स इनटू इंडिया फ्रॉम नामचा बरवा। नामचा बरवा पहाड़ी है, पीक है हिमालयाज में, जहां से ये एंटर करती है और एक कट बनाती है, एक गॉर्ज बनाती है, जिसे कहा जाता है दिहांग। दिहांग गॉर्ज के बाद ये रिवर और आगे बढ़ती है, और दिबांग और लोहित जैसी ट्रिब्यूटरीज बनाते हुए असम क्रॉस करके अब ये आ गया आपका बांग्लादेश। तो यहाँ आ गई ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम यहाँ जाकर होता है जमुना। गंगा यहाँ से आ रही होती है, जो कहलाती है पद्मा। ये पद्मा और जमुना जब मिलते हैं तो बनती है मेघना, और मेघना ड्रेन कर जाती है बे ऑफ बंगाल में फ्रॉम सुंदरबन डेल्टा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मेजर पार्ट तो हमने गंगा में पढ़ लिया था, बस थोड़ा सा ही जो है वो याद करना है, तो एक बार थ्योरी के थ्रू भी देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र rises in Tibet east of Mansarovar Lake, very close to the sources of Indus and Satluj. Indus near Lake Mansarovar है, और ये from Lake Mansarovar है। Slightly longer than Indus, but इसका जो most of the course है वो इंडिया से बाहर है। अब it flows eastwards parallel to Himalayas, and on reaching नामचा बरवा भाई हिमालयाज के बिल्कुल पैरेलल चल रही होती है ना, फिर reaching नामचा बरवा it takes a U-turn and enters India from अरुणाचल प्रदेश, making a gorge which is called दिहांग gorge, और फिर ट्रिब्यूटरीज बनाती है लोहित, राइट, दिबांग। ये ट्रिब्यूटरीज बनाते हुए ब्रह्मपुत्र पूरा असम क्रॉस करती है, और फिर पहुंचती है कहां पर? बांग्लादेश में, जहां पर सैंगपो या ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना, राइट। अब ये रिवर जो है ये थोड़ा स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर, सैंड एंड सिल्ट लेकर रहती है तिब्बत में ये ज्यादातर फ्रोजन रहती है ना, क्योंकि, और जैसे ही इंडिया आती है तो एक अच्छा पानी, एक अच्छा वाटर इसमें देखा जाता है, क्योंकि काफी बारिश भी होती है इस रीजन में, और अच्छा खासा आप देखो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स यहाँ पर खूब बारिश लाती हैं, और एक ये जो सोर्स है वो भी समर्स में मेल्ट करेगा, ग्लेशियर मेल्ट करेगा, तो खूब पानी आएगा। तो ब्रह्मपुत्र जो है इट हैज अ ब्रेडेड चैनल एंड इट्स एंटायर लेंथ इन असम फॉर्म्स मेनी रिवराइन आइलैंड। अब बहुत खूबसूरत सी बात है, ब्रेडेड चैनल, यानी आपने देखा ना जैसे चोटी बनती है ऐसी, तो ये ब्रेडेड चैनल इस तरीके से, जिसकी वजह से बीच में जो ये है दिस इज लैंड, राइट। तो ये रिवराइन आइलैंड हो गया ना। व्हाट इज आइलैंड? वाटर, लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम फोर साइड्स, तो ये रिवर से सराउंडेड है, तो दिस इज रिवराइन आइलैंड। अदरवाइज जो आइलैंड होते हैं वो चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है, बट इट इज ओशन वाटर। पर हर साल रेनी सीजन में हम ये देखते हैं कि ये रिवर जो है वो ओवरफ्लो करती है बैंक्स पे, जिसकी वजह से काफी डिवास्टेशन, फ्लड्स, नुकसान देखा जाता है बांग्लादेश में भी और असम में भी,
राइट। इसके अलावा अगर नॉर्दर्न रिवर्स की बात करें, इंडिया की जो नॉर्दर्न रिवर्स की बात करें, तो ब्रह्मपुत्र जो है वो ह्यूज सैंड एंड सिल्ट लाती है, बहुत अच्छा खासा एक रिवर बेड क्रिएट करती है इस रीजन में, लेकिन फिर चली जाती है बांग्लादेश हमें अलविदा करते हुए। अब यहाँ पर हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पे। तो ध्यान दीजिए, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी इसकी। एक, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो रिवर है इसके जो सोर्सेज ऑफ ओरिजिन है, या तो वो विंध्यास है, विंध्यास की जो पहाड़ियां हैं ये यहाँ पर सतपुरा रेंजेस है, महादेव हिल्स है, और यहाँ पर जो है वेस्टर्न घाट है। मेजरली ये जो रिवर्स है या तो ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट कर रही है, या फिर इनका ओरिजिन पॉइंट ये सेंट्रल हाईलैंड्स के जो रेंजेस हैं यहाँ से है। और ये नदियां दो तरीके की नदियों में डिवाइडेड है। एक है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ऐसी नदियां जो विंध्यास से शुरू होकर अरेबियन सी पर ही खत्म हो जा रही है, जैसे नर्मदा है, तापी सतपुरा से शुरू होकर अरेबियन सी में खत्म हो जाती है। तो ये सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, और मेजरली यहाँ पर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। अच्छा, माही भी है ईस्ट, ऐसे तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर और भी हैं, लेकिन जो हम पढ़ेंगे, हम नर्मदा और तापी वेस्ट फ्लोइंग में पढ़ेंगे, और ईस्ट फ्लोइंग में हम ये आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारी पढ़ेंगे जो बे ऑफ बंगाल में जाएंगी। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो है वो डिवाइडेड है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में। अब ये जो नदियां हैं ये या तो अपने एंड पर एक डेल्टा बनाएंगी, ये बहुत बड़ी खासियत है, आप सुनिएगा। ज्यादातर जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो वेस्ट वाली रिवर्स हैं हमारी, वो डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा क्या होता है? जब आप ढलान से चलकर आ रहे हो, खूब चिकनी मिट्टी डिपॉजिट कर रहे हो, बहुत आपकी रिवर जब एंड हो रही है तो ब्रांचेस में स्प्लिट हो रही है, लेकिन ऐसा वेस्ट फ्लोइंग के केस में नहीं हो पाता, क्योंकि वेस्ट फ्लोइंग नदी देखो, नर्मदा को कितनी जगह मिली, ये चली और यहाँ खत्म, राइट। ये रिफ्ट वैली में चल रही होती है, इधर विंध्यास है, इधर सतपुरा है, दोनों पहाड़ियां है, दोनों स्प्रेड करने को कोई जगह नहीं मिल रही। तो ये क्या ऐसे आई, और ऊंचाई से जब ये रिवर ओशन में गिरेगी, तो जब ऊंचाई से रिवर गिरती है इट इज कॉल्ड एन एस्टरी, और जब रिवर ढलान पर चल रही होती है इट मेक्स एन डेल्टा। समझ आया? तो रिवर जो वेस्ट फ्लोइंग है वो क्या बनाएंगी? एस्टरीज अपने एंड में, और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो क्या फॉर्म करती हैं? वो डेल्टा फॉर्म करती है। और हम जानते हैं कि पेनिनसुलर रिवर्स का जो बेसिन है वो उतना बड़ा नहीं है, तो एक शांति आपको मिली होगी कि इतना लर्न नहीं करना पड़ेगा, पर हाँ लर्न तो करना पड़ेगा फिर दूसरे पॉइंट से, राइट। तो सबसे पहले अगर हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में बात करेंगे तो नर्मदा की बात करेंगे। नर्मदा जो है वो ओरिजिनेट करती है अमरकंटक हिल्स विच आर इन विंध्यास। ये अमरकंटक है मध्य प्रदेश में, और ये जो है रिफ्ट वैली के थ्रू, मैंने कहा पहाड़ों के बीच में चलते हुए बहुत सारी पिक्चरिस्टिक लोकेशंस बनाती है। वाटरफॉल्स इसके बहुत जाने जाते हैं, जैसे धौलाधार फॉल्स है, मार्बल रॉक्स है जबलपुर में, ये बहुत ही फेमस वाटरफॉल्स हैं जो नर्मदा अपने रास्ते में क्रिएट करती है, पर बेचारी को ज्यादा जगह नहीं मिलती, तो फिर ये ड्रेन कर जाती है अरेबियन सी में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पेनिनसुलर रिवर्स की जो हमें याद रखनी है कि कौन कौन से स्टेट्स कवर करती है। तो ये कवर करती है मध्य प्रदेश और गुजरात। अब हम बात करते हैं अगली वेस्ट फ्लोइंग रिवर की, विच इज तापी। तो तापी जो है वो सतपुरा रेंजेस, अगर ये विंध्यास है तो ये सतपुरा है। सतपुरा की बैतूल डिस्ट्रिक्ट से जो है तापी शुरू होती है, यानी आप देखो नर्मदा से नीचे की तरफ, नर्मदा ऊपर है तो तापी जो है वो नीचे है। तो ये जो है ये महाराष्ट्र भी कवर करेगी, जैसे नर्मदा सिर्फ गुजरात और मध्य प्रदेश कवर करती है, ये महाराष्ट्र भी कवर करेगी। इसका ओरिजिन आपने समझ लिया, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से है, रिफ्ट वैली में चलती है, पैरेलल टू नर्मदा चलती है, छोटा लेंथ है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र कवर करती है, और बस बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है, राइट। तो हम ये देखते हैं कि ये जो नदियां हैं ये वेस्टर्न घाट्स या इन्हीं जगहों से ओरिजिनेट करके और बहुत छोटा नैरो स्पैन कवर करके चली जाती हैं। कुछ कुछ तो ऐसी हैं जैसे माही हो गई, है ना, अपना पेरियार हो गई, जिनके तो और छोटे वाटर स्पैन्स है, वेस्टर्न घाट से निकली और अरेबियन सी में ड्रेन कर गई। फिर भी नर्मदा तापी थोड़ी लंबी है, इसलिए इनका ड्रेनेज बेसिन आपके कोर्स में रखा गया है। फिर यहां से शुरू होती है हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स में जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की सबसे पहली नदी है गोदावरी, राइट। गोदावरी जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है।
गोदावरी जो है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है जो ओरिजिनेट करती है वेस्टर्न घाट में, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। आप देखो ये वेस्टर्न घाट आ गए, तो वेस्टर्न घाट नासिक से शुरू होगी ये नदी, और इसकी लेंथ कितनी है, 1500 किलोमीटर की लेंथ है, और चली जाएगी बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि ईस्ट फ्लोइंग है ना, राइट। तो ड्रेनेज बेसिन जो है वो बड़ा है, पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे बड़ा है, और इसीलिए मैंने कहा इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। क्या क्या कवर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करना पड़ेगा, राइट। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश रीजन्स कवर करते हुए ये रिवर आगे बढ़ जाती है। गोदावरी की कई ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको लर्न करने का एक मैं बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। P3, P से 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, पेनगंगा, राइट, प्रहीता, पूर्णा। फिर है W2, W2 यानी W से 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, वेनगंगा और वर्धा, और M स्टैंड्स फॉर मंजरा, राइट। तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं, 6 ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको याद करनी है, और मैंने फिर बता रही हूँ दक्षिण की गंगा कहा जाता है क्योंकि दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, और दक्षिण यानी साउथ, राइट। फिर आते हैं सेकंड विच इज महानदी। महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है, मतलब विंध्यास और सतपुरा, वही बेल्ट आ गया ना, राइट। फिर उड़ीसा पहुंचती है और उड़ीसा से बे ऑफ बंगाल चली जाती है, ज्यादा लंबी नहीं है। 860 किलोमीटर का इसका जो फ्लो है, लेंथ है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा कवर करती है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं कृष्णा रिवर पे, विच इज थर्ड ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो हमारे कोर्स में है। ये महाबलेश्वर से शुरू होती है और 1400 किलोमीटर है, जैसे क्योंकि इसका ओरिजिन देखो ना वही महाराष्ट्र वाला है, गोदावरी के पास, राइट। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तुंगभद्रा, कोयाना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा, याद रखनी होंगी। और ये एरिया कवर करता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, तीनों रीजन्स को क्रॉस करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर डेल्टा बनाती है। फिर आती है रिवर कावेरी जो ब्रह्मगिरी रेंज, केरला की ब्रह्मगिरी रेंज है, यहाँ पर कुडलौर है, सो केरला से तमिलनाडु कुडलौर के से क्रॉस करते हुए ये आगे निकल जाती है। सो कावेरी राइजेस फ्रॉम ब्रह्मगिरी इन द वेस्टर्न घाट्स विच इज इन केरला, राइट। बे ऑफ बंगाल पहुंचती है साउथ ऑफ कुडलौर से, कुडलौर के साउथ होते हुए, और 760 किलोमीटर का इसका जो है लेंथ है। इट ड्रेन्स इनटू, कवर कौन कौन से रीजन कर लिए, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। यू हैव टू लर्न इट, मुझे बिल्कुल बकायदा याद है, आपको भी याद करना होगा। और ये कावेरी जो है ये इंडिया का सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है, जो है शिव सुंदरम फॉल्स, एंड इट ऑल्सो हैज गोल्ड माइंस, फील्ड, गोल्ड फील्ड्स है यहाँ पर, राइट। अब रिवर सिस्टम खत्म होता है तो हम पहुंचते हैं लेक्स पर। लेक्स जो हैं वो रिवर से ही बनने वाले वाटर बॉडीज हैं। रिवर की अगर कोई ट्रिब्यूटरी, जैसे रिवर जो है वो मियांडरिंग कर रही है, अगर रिवर की कोई ट्रिब्यूटरी आप आर्टिफिशियली अलग कर देते हो, यानी डैम बना देते हो, राइट, तो इतना हिस्सा रिवर का अलग हो गया। अब ये नदी तो थी उतनी ही डीप है, तो लेक की एक खासियत होती है कि बहुत डीप होते हैं, राइट। तो आपने आर्टिफिशियली डैम बनाकर अलग करी तो आर्टिफिशियल लेक हो गया। अगर ये ट्रिब्यूटरी, ये हिस्सा सपोज नेचुरली कोई रॉक बैरियर आ गया, अलग हो गया, तो ये नेचुरल लेक हो गई। अगर जब जो हिस्सा सेपरेट हुआ है उसका शेप कुछ इस तरीके से है तो ये ऑक्सबो लेक हो गई, राइट। तो इसमें हम सारे टाइप्स ऑफ लेक्स भी कवर कर रहे हैं कि लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैंने आपको बताया जैसे मियांडरिंग चल रही है, या जब ये इतनी सारी टोपोग्राफी को क्रॉस करती है, फ्लड प्लेन्स या बहुत सारी जगहों को क्रॉस करती है, तो कई बार ये नदी का ही कोई हिस्सा, जैसे आप ये देखो ये हिस्सा अलग हो गया, सो दिस इज एन ऑक्सबो लेक। नदी का ही हिस्सा उससे अगर अलग हो जाए, जब रिवर मियांडर्स बनाए, बाइफरकेट हो, राइट, तो ऐसे केस में अगर उसी का हिस्सा उससे अलग हो जाता है तो वो लेक बनता है, और डिपेंड करता है कि वो अलग कैसे हुआ, राइट। अब ऐसे ही कोस्टल एरियाज पे लगून बनते हैं, सॉल्ट वाटर से क्रिएट होते हैं। सॉल्ट वाटर ओरिजिन देखा जाता है, जैसे हमारा चिलिका लेक है, वो एक बहुत बड़ा सॉल्ट वाटर लगून है, लेकिन उसको लेक कहा जाता है क्योंकि लगून यूजुअली इतने डीप नहीं होते, पर चिलिका बहुत डीप है। अब मैंने आपको जैसे बोला कि लेक्स के जो टाइप्स हैं वो उसके फॉर्मेशन से डिसाइड होते हैं, तो हम देखेंगे सांबर लेक जो राजस्थान में है ये सॉल्ट वाटर लेक है, क्योंकि इसकी जो पेरेंटल रॉक है, जो सी बेड है, उसमें सॉल्ट की अवेलेबिलिटी है। राजस्थान की जमीन में सॉल्ट कंपोनेंट पाया जाता है पेरेंटल रॉक में, तो यहाँ के लेक वाटर में भी, जबकि ये फ्रेश वाटर होता है, रिवर वाटर, लेकिन यहाँ पर सॉल्ट पाया जाता है।
फिर वहीं पर आप देखोगे तो फ्रेश वाटर लेक में हम एग्जाम्पल देखेंगे आपका वुलर है, राइट। बहुत सारी हिमालयाज में आप देखोगे ना, हिमालयन रीजन में खूब सारी फ्रेश वाटर लेक्स आपको मिलेंगी। और बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे मैंने बताया वुलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में। अब इन पे भी मैचअप्स या 1 मार्कर्स बनते हैं, राइट। और बहुत सारे फ्रेश वाटर लेक्स, जैसे नैनीताल वाला तो पूरा बेल्ट है, राइट। भीमताल है, लोकताल है, बारापानी है, ये सब फ्रेश वाटर लेक्स हैं जो अलग हुई हैं। अब आर्टिफिशियली अलग हो गए डैम बना के, तो आर्टिफिशियल लेक हो गए, ताकि हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके, बिजली बनाई जा सके। तो ये बनाया गया, जैसे गोविंद सागर प्रोजेक्ट है, भाखरा नागल प्रोजेक्ट है, राइट। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्स भाई, राइट। वाटर का सोर्स है, फिशिंग एरिया बहुत शानदार होता है लेक्स में, रिक्रिएशनल पर्पसेस से नैनीताल बहुत सुंदर जगह है, और वो लेक्स ही है वहां पर जो उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है, खासियत है। अच्छा, पानी कम होता है तो फ्लड्स के थ्रू पानी भी आ जाता है वापस, तो इस वजह से देखते हैं हाइड्रो पावर जनरेट करने के काम आता है। बहुत सारे पर्पसेस है, नेचुरल ब्यूटी को तो नेचुरली बढ़ाता ही है। और भारत में नदियां तो हैं, लेकिन हमारी बहुत बड़ी समस्या है, वो है रिवर पोल्यूशन। रिवर पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करना है, हमें उस पर काम करना है। और गंगा एक्शन प्लान जो है, ये 1985 से चल रहा है। गंगा एक्शन प्लान फेज 1 फेज 2 चला। फेज 1 में पूरे गंगा की क्लीनिंग पे काम किया गया, लेकिन एक पल्लड़ा जो है वो छूट गया उसमें, वो था पोल्यूशन को रोकना। तो जब फेज 2 लॉन्च हुआ, तो जिस जिस जगह से, जिस जिस एरिया से गंगा गुजरती थी, उन सारी जगहों की क्लीनिंग पे भी काम किया गया, और फेज 2 सक्सेसफुल रहा। और आज मोदी गवर्नमेंट नमामि गंगा प्रोग्राम चला रही है टू क्लेंस एंड टू रेजुविनेट द मेजर सोर्स ऑफ वाटर विच इंडिया हैज। साथ ही साथ हम जानते हैं कि रिवर हमारी इकोनॉमी के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितना डेवलपमेंट देते हैं। आप देखो मेजर सिविलाइजेशंस जो हैं वो रिवर बैंक पे ही शुरू हुई। सिविलाइजेशंस के बाद जब हम दोबारा सेटल किए तो जनपद महाजनपद भी रिवर बैंक से ही शुरू हुए। वो रीजन जो, या वो किंगडम्स जो नदी के तट पर हुआ करते थे, राइट, या गंगा के तट पर होते थे स्पेशली, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता था, बहुत बड़ी नदी है, तो वो बहुत प्रॉस्परस भी होते थे, शुरू से देखा गया है। अच्छा, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, इरिगेशन के लिए कैनाल्स बना दिए जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री को पानी की ज़रूरत है, हमें डोमेस्टिकली पानी की ज़रूरत है, रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए, हर चीज़ के लिए रिवर इम्पॉर्टेंट है। हम किस किस चीज़ को गिनाएंगे, और हमें कंट्रोल करना है वाटर पोल्यूशन पे हर लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, म्यूनिसिपल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, राइट। हर लेवल पे आपको काम करना है कि आप जो है वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके, रिवर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके, कोई भी अनट्रीटेड वेस्ट जो है वो ना डाले, राइट। जैसे थर्मल है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। थर्मल पावर स्टेशन से कई बार गर्म पानी डाल दिया जाता है रिवर्स में, और जब गर्म पानी मिलता है ना, तो कितना मराइन लाइफ है जो मर जाती है, राइट। बस करना क्या है, ठंडा करो, ठंडा करके भी हम डाल सकते हैं उसको, ट्रीट करके हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, पर ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी, एक सिविक ड्यूटी बन जाती है कि हमें अपनी नदियों के लिए काम करना है। सो आई होप चिल्ड्रन यू आर वेरी क्लियर विथ एंटायर ड्रेनेज चैप्टर। और वो जो हुआ दिमाग में बना रखा था कि यार मैम बहुत 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 बड़ा है, वो थोड़ा सा तो कम हुआ होगा। ऑल द बेस्ट, डू वेल इन योर एग्जाम्स, और हम लगातार आपके साथ हैं, चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।